Hello everyone. I am Professor Amit Vyas, Computer IT Department from Dr. Subhash Technical Campus. Today we are discuss about the subject of analysis and design of algorithm, and we can discuss about the chapter of string matching, and we are cover the topic of naive string matching. So in the string matching we can show about different types of algorithm. So first is naive string matching algorithm. Then we can show Rabin-Trap algorithm, finite automata, and Kruth-Morris algorithm. So this is the all the string matching algorithm. Now we can show about the first naive string matching algorithm. First of all, we are show about what is the introduction of string matching. String matching algorithm is also called a string searching algorithm. This is a virtual class of string algorithm is declared. This is the method to find a place where one is the server string are found within a large string. So using string matching algorithm, you can find a string for any particular number of string. So what is the name string matching algorithm? Name string algorithm does not require any pre-processing activity. Give some text is denoted by the T and give some pattern is denoted by the P. Is directly start comparing the both string character by character. After the each comparison, it shift a pattern string one position to the right position. So we can show that how can you solve or given the problems in a naive string matching algorithm. You can provide one text and pattern and you compare both the pattern and text. If the pattern and text is compared, then it is shift a pattern a string one position to the right position. So you can shift a position for the one to left to right. So we can show the example. Then after you can show that how can you solve the problems. The example of string matching algorithm is denoted by here. If you provide your text, it means t equal to 10 triple 10 triple 10 and p, it means the some pattern is you can occupy p equal to triple 1 and find all the valid shift. तो आपको एग्जाम में क्या दिया होगा और आपको प्रॉब्लम कैसे स्टेटमेंट दिया होगा, आपको कोई टेक्स्ट दिया होगा और उसमें कोई वैल्यू दी होगी. यहाँ पे 10 ट्रिपल 10 ट्रिपल 10 ऐसा कुछ दिया हुआ है. यहाँ पे आपको कोई अल्फाबेटिक वैल्यू भी दी होगी, शायद ए बी सी डी और ए बी बी सी सी डी, और उसके बाद आपको पैटर्न पी दिया होगा जो यहाँ पे ट्रिपल 1 है और शायद यहाँ पे ए बी दिया हो और यहाँ पे कोई कैरेक्टर दिया हो, और उसके साथ आपको कोई वैलिड शिफ्ट फाइंड करनी है कि आपकी जो पैटर्न है वो कितनी बार इस टेक्स्ट के साथ मैच होती है. तो इस तरह से कोई एग्जाम्पल आपको दिया होगा तो आप देखेंगे कि कैसे सोल्व आउट होता है. So you have given a text and you also given one pattern. Pattern is denoted by the P. You can show that here. Pattern you have given P equal to 111 and find the all the valid shift. So we can solve the example. So step number 1, you can write this text into this form, the tabular form, and you can write the pattern. So step number 1, you can write here all the 10
triple one, 0, triple one, 0, and write here pattern. So how can you compare? So this is the basic step, and also you can show that here we can compare that. You can compare. तो आपको क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. इस टेक्स्ट को आपको इस टेबुलर फॉर्म में लिखना है और पैटर्न को नीचे टेबुलर फॉर्म में लिखना है. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कैरेक्टर को फाइंड करना है, कौन से कैरेक्टर और वैल्यू है सेम है. देखिए we can show that here if we can show here 1 and 1 both are the same. Yes, then you can check the second character. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, both are the same. No, अगर ये कैरेक्टर दोनों सेम नहीं है तो आपको क्या करना है, इस पैटर्न को शिफ्ट करना है. फिर से रिपीट करता हूँ जैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. आपको इस तरह से कोई एक टेबल में वैल्यू पुट करनी है जिसे आप टेक्स्ट कहोगे और नीचे पैटर्न को लिखना है. उसके बाद क्या करोगे, आप सर्च करोगे. यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बोथ आर द सेम. इसका मतलब है कि बोथ वैल्यू आर सेम. यस. उसके बाद आप दूसरे वैल्यू को कंपेयर करोगे. यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1. दिस इज द नॉट सेम. इसका मतलब कि ये पैटर्न मैच नहीं हो रहा. पैटर्न कब मैच होगा, अगर यहाँ पे तीनों 1 है और यहाँ पे तीनों 1 है तो पैटर्न मैच हो जाएगा. हम देखेंगे कैसे पैटर्न मैच होता है. तो वी कैन शो दैट हियर फर्स्ट. यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है. यस, देन यू कैन इंक्रीमेंट बोथ द वैल्यू. तो आप इस वैल्यू को कंपेयर करोगे. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये मैच नहीं हो रहा. तो उसके बाद क्या करोगे, आप इस पैटर्न को शिफ्ट करोगे. कैसे देखते हैं. आपने देखा होगा यहाँ पे दोनों मैच है लेकिन ये दोनों मैच नहीं है. तो उसके बाद आपने क्या किया, इस पैटर्न को शिफ्ट किया यहाँ पे और उसके बाद आप कंपेयर करोगे. उसके बाद क्या कंपेयर करना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों मैच नहीं है. कोई बात नहीं, आप फिर से शिफ्ट करोगे यहाँ पे. तो 1 और उसके बाद आप चेक करोगे 1. तो आपने देखा होगा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है. आपने क्या किया, शिफ्ट किया. स्टेप नंबर 3 में आपने किया शिफ्ट. इसका मतलब यह हुआ कि अगर जो वैल्यू आपको मैच होती है, कंपैरिजन आप करते हो बहुत वैल्यू का, अगर वैल्यू सेम होती है तो आप यहाँ से इंक्रीमेंट करोगे बोथ द साइड. अगर मैच नहीं होती है तो आप पैटर्न को राइट साइड शिफ्ट करोगे. तो ये कंडीशन है. इफ द बोथ वैल्यू और कंपैरिजन इज सेम, द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट एंड पैटर्न इज सेम, then you can increment both right side. Otherwise you can increment only for pattern. So we can show this is the match, you can shift here, but this is the not match, so you can go to the second step. Second step में आपने क्या किया, यहाँ पे पैटर्न को इंक्रीज किया लेकिन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों मैच नहीं हो रही. ओके, तो अब क्या करोगे, इस पैटर्न को यहाँ पे शिफ्ट करो. आपने शिफ्ट किया इधर, फिर आपने देखा कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है. ओके, देन यू कैन इंक्रीमेंट. कंटिन्यू स्टेप. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है. ओके, यू कैन इंक्रीमेंट. यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है. सो यू कैन चेक दैट दिस स्टेप इज अ वैलिड स्ट्रिंग मैचिंग स्टेप. तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग फाइंड हो जाएगी. उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये आपने यहाँ से स्ट्रिंग मैचिंग किया, उसके बाद आप यहाँ आओगे यहाँ पे. तो ये स्टेप हो गया 1, 0 और 1 के लिए. उसके बाद आप यहाँ आओगे यहाँ पे. तो अब आपको स्ट्रिंग मैचिंग करना है. 1 के साथ स्ट्रिंग मैचिंग करना है, 1 और 1, ये बोथ सेम. यस, देन यू कैन इंक्रीमेंट 1, 0. दिस इज द सेम. यस, देन यू कैन इंक्रीमेंट 0 और 1. This is the node step. So this is the process is you can complete it. उसके बाद आपको इंक्रीमेंट करना है यहाँ पे और पैटर्न आ जाएगी यहाँ पे. तो आप देख सकोगे ये आ गई है यहाँ पे आप, और कंपैरिजन पैटर्न यहाँ पे 1 and 1 both are the same. Yes, then you can increment 0 and 1 both are the same. No,
So you can stop here and go to the next step, and it is the step number 6. तो आप क्या कंपेयर करोगे, 0 और 1. आपने देखा होगा 0 and 1 is the same. No. Then you can increment here also, and go to here. 1 and 1 both are the same. Yes. Then go to the here. 1 and 1 both are the same. Yes. Then go to the next. 1 and 1 both are the same. Yes. So you can find here the string matching. So which is the valid step? You can show that. So you can show that here the S2 is a valid step. तो आपने क्या किया कि यहाँ पे S2 है, valid है, because of you can show this continue for the pattern is matched in the particular step. So 1 is a S2 is a valid step, and then here S6 is a valid step. तो आपने क्या किया कि यहाँ पे जो वैल्यू कंपेयर की हुई है 1 2 3, तो उसको कंपेयर किया और उसे आपने किया कि ये वैलिड स्टेप है. So you can compare 1 and 1. Yes, then you can increment 1 and 1. Yes, then you can increment 1 and 1. Yes, then you can increment. But that time you can find the valid step for the pattern match. So this is the step you can count. Also you can find here 0 and 1. It is a not a continuous step because of comparison both are the not same. So this is the string matching algorithm. We can show that here also. What is the string matching? You can find the string for particular any number or any large number of algorithm. So what is the use of the string matching? You have given any string or you have given any number or any value, and you can find a particular word, then you can easy to find for the string matching. अगर आपको ये पूरा जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें से एल्गोरिदम ऐसा कुछ वर्ड फाइंड करना है और एक कितनी बार आया है, तो इससे आप स्ट्रिंग मैचिंग के जरिए फाइंड करोगे. So this is the importance of the string matching. Or you can show also the one keyword search engine optimization in the Google. तो गूगल में क्या होता है कि आप कोई भी कीवर्ड सर्च करोगे तो आपने रिसेंटली सर्च किया होगा तो वो वैसे ही आपके स्क्रीन पर में आ जाएगा जो टैब दिया हुआ है उसमें. तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और एनी रियल टाइम एग्जांपल. और इसका दूसरी जगह यूज़ होता है कि आप कोई एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपकी वेबसाइट रैंकिंग के लिए स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम यूज़ होता है. उसके बाद आप कोई पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के लिए स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम यूज़ होता है. आपको कोई कीवर्ड सर्च करना है या कोई पर्टिकुलर मटेरियल्स या कोई रिसर्च के टॉपिक फाइंड करने हैं, तो कौन सा टॉपिक बेस्ड है और उसे गूगल में रैंकिंग दी हुई होगी, तो इसे स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम यूज़ होता है. So many more example of the string matching algorithm. So the string matching is important for the real-time example. So the string matching algorithm used in the many more for the real-time application. So we can show that. So we can show that string matching algorithm. We can show the naive string matching algorithm. So what is the string matching introduction we can show, and how can you solve the problems? You have given the problems. The problems is you have given one text. यहाँ पे आपको कोई नंबरिंग दिया हुआ है और पैटर्न दी हुई है. यहाँ पे आपको कोई अल्फ़ाबेट भी दिया होगा और यहाँ पे कोई उस अल्फ़ाबेट की सेम पैटर्न भी दी होगी, और उसे आपको इसी तरह से प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है. So we can repeat the step. We can quickly. आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1,
आपको टेक्स्ट और पैटर्न को मैच करवाना है। टेक्स्ट एंड हाउ कैन यू मैच, आप कैसे टेक्स्ट और पैटर्न को मैच करवाओगे? तो स्टेप इज यू कैन फाउंड हियर, कंपैरिजन करना है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, यस, देन यू कैन इंक्रीमेंट बोथ द साइड। आप यहाँ पे जाओगे 0 है, यहाँ पे 1 है, सो दिस इज द नॉट अ सेम। तो उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है यहाँ से और पैटर्न स्टार्ट होगी, ये शिफ्ट हो जाएगी यहाँ से। तो आपने देखा होगा 1 एज इट इज, स्टेप इज कंप्लीटेड। अब स्टार्ट करना है 0 से, आपने यहाँ से, और पैटर्न शिफ्ट हो जाएगी राइट हैंड साइड। आपको कंप्लीट करना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, so this is the not same, both value is not same, then you can increment, को increment करना है। this is the 1, then you can shift here also, यहाँ पे भी increment करना है, so you can increment here, you can show here 1, here on, both are the same, yes, then you can increment and check that here 1 and 1, yes, then you can increment both the side 1 and 1, yes. So here you have given the pattern. The pattern is 111 and you can found the pattern. The pattern is 111. So this is the string matching algorithm. आपको यहाँ पे पैटर्न हो फाइंड हो जाएगी। तो उसके बाद क्या करना है, तीनों पैटर्न यहाँ पे फाइंड हो गई, लेकिन वो स्टेप कौन सा था, यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, तो आपको तीनों पैटर्न मैच होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और इसे 1 शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड। तो आपने देखा मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 1 and 1, this is the compare, yes, both are the same, yes, then you can increment, like increment किया यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, both are the same, yes, then you can increment और shift, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, both are the same, so this is the node, you can find the pattern, so you can increment here also। यहाँ के आपको एक शिफ्ट करना है और यहाँ से भी आपको शिफ्ट करना है 1 and 1, yes, you can find the value is same, yes, then you can find increment both the side 0 and 1, now the pattern is met, so you can increment and you can complete, or you can found here 111, then you can found here 111, so this is the string matching algorithm। यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी होगी 0 1 2, इसी तरह से आपको स्ट्रिंग को मैच करवाना। so this is you can found the two string matching। आपने क्या फाइनली आंसर मिलेगा कि आपको स्टेप नंबर 6 में, और ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी स्टेप में, यहाँ से आपको लिखना है कि यहाँ से आपको एक फाइनल पैटर्न फाइंड हुई है और दूसरी पैटर्न यहाँ पे फाइंड हुई है, तो आपको फाइनली लिखना है वी हैव फाउंड द टू स्ट्रिंग पैटर्न मैच इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो फाइनली आपको ये आंसर लिखना है वी हैव फाउंड द टू string matching algorithm in particular string। Then finally, what is the main application of the string matching algorithm? The application is SEO। So what is the SEO? Search engine optimization। आप कोई भी कीवर्ड कोई भी ब्राउजर में सर्च करोगे तो उसमें आप कैसे कीवर्ड को सर्च करोगे, कैसे आप अपनी वेबसाइट को रैंकिंग फर्स्ट पेज पे लेके आओगे, उसे आप एसईओ कहोगे। गूगल एनालिसिस, गूगल कैसे कोई भी कीवर्ड को एनालिसिस करता है, उसमें स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम इज द इम्पोर्टेंट टास्क। डेटा माइनिंग, डेटा में आपको कोई बिग टेबल दिया होगा या कोई एक प्रोजेक्ट में आपको डेटा माइनिंग करना है, उसमें आप स्ट्रिंग मैचिंग करोगे। नेटवर्क सिमुलेशन में इसका यूज होता है। डेटा सर्च, मैंने आपको बताया था कि कोई एक, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे आपको इस कोई भी वैल्यू दी हुई है, यहाँ से आपको फाइंड करना है कि एल्गोरिथम कितनी बार आया हुआ है, तो आप कैसे फाइंड करोगे।
तो अल्गोरिदम टाइप करोगे जो एक कीवर्ड है, तो इसे आप स्ट्रिंग को मैच कर पाओगे कितनी बार दिया हुआ है। कीवर्ड सर्च ऑल्सो भी द पार्ट एंड द डेटा सर्च में आपको रिसर्च में यूज होगा। पैटर्न सर्च, कोई भी पैटर्न को आपको सर्च करना है तो उसमें आपको रिसर्च वर्क में यूज होगा। डेटा एनालिटिकल फॉर द पर्टिकुलर एआई एंड मशीन लर्निंग में आपको स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम यूज करना होगा। So this is the important task of the string matching algorithm. Now the problems you have solved out, solve the naive string matching problem. आपको क्या दिया होगा? मैंने आपको यहाँ पे टी, इसका मतलब टेक्स्ट दिया हुआ है, और पैटर्न पी दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है कि पैटर्न कितनी बार आता है। प्रीवियस में आपने देखा टू, इफ यू फाइंड द टू पैटर्न स्ट्रिंग मैचिंग एंड here you can find how many string pattern आपको फाइंड करना है। टेक्स्ट दिया हुआ है और पैटर्न भी दिया हुआ है, so you can find the how many pattern in particular text area। आपको फाइंड करना है कि कितने पैटर्न यहाँ पे मैच होती है और कितना स्टेप होता है। So thank you all of you